परमेश्वर की स्तुति हो। As I was reading the book of Job today and yesterday and even before, when I read the book of James chapter 5, let's go to James chapter 5 verses 10 and 11. James chapter 5. तो याकूब के पुस्तक में जाएंगे चैप्टर 5। याकूब चैप्टर 5 Chapter 5 verse 10 and 11. वाक्य 10 और 11। My brothers, remember the prophets who spoke in the name of the Lord. Take them as examples of patient endurance under suffering. We call them happy because they endured. You have heard of Job's patience, and you know how the Lord provided for him in the end. For the Lord is full of mercy and compassion. वाक्य 10। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने आयुब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट हुई है। So it mentions here that the book of Job shows God's unlimited compassion and patience. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आयुब के पुस्तक से हमें परमेश्वर की असीमित करुणा और असीमित धीरज दिखती है। And if we go to the book of Job and read the book of Job, it mentions how Job was such an upright and blameless man. और आयुब के पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे आयुब बहुत ही खरा और सीधा व्यक्ति था। Yet in his blamelessness and in his uprightness, God challenged Satan, telling him that you take away everything that belongs to Job, only spare his life, and see that I am confident that he will not deny me. और शैतान जाके इस स्थिति में परमेश्वर से कहता है कि तुम उसके जीवन को छोड़कर उसके पास बाकी जो कुछ भी है उसे छीन लो, और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या वो धार्मिक रहता है, क्या वो आपकी ओर धन्यवाद देता है। Satan removed his property, his children, finally his health also, and just his wife also told Job to commit suicide. तो हम लोग देखते हैं कि कैसे शैतान ने उसका धन संपत्ति ले लिया, उसके बच्चों को ले लिया, और अंत में उसकी पत्नी भी आके उसको बोलती है कि तुम परमेश्वर को कोसो और खुदकुशी कर लो। It was not his wife, it was the devil that was coming to his wife and telling him, curse God and die. तो उस समय वो उसकी पत्नी नहीं थी, लेकिन पत्नी के जरिए शैतान उसको बोल रहा था कि तू परमेश्वर को कोस और खुदकुशी कर ले। So many of us have gone through the situation in our life where we have lost something, we have lost some financially or physically, some sickness or some problem which really causes us to really doubt God's love for us. और हम सभी ने कभी ना कभी अनुभव किया है कई सारे क्लेश, कई सारे दुखों, हो सकता है पैसों के मामलों में या कोई बीमारी, जिसकी वजह से हम लोग परमेश्वर के प्रेम के ऊपर शंका करने लगते हैं या शक करने लगते हैं। Many times we feel like giving up. Many times there may be some people here who are tempted, who are even tempted to give up their life also. और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मसीह जीवन से पीछे हट जाए, और कुछ लोगों को कभी कभी ऐसा भी मन करता है कि वो लोग आत्महत्या कर ले। But God tells us this thing that, when God talks to Job in Job chapter 38, 39 and 40, और परमेश्वर और गॉड टेल्स जॉब, और परमेश्वर आयुब से कहते हैं चैप्टर 38, 39 और 40 में, He tells Job, do you know my wisdom? Do you know how I made the creation? Do you know how the mountain lions, I feed them? Do you know how I take care of all the animals in the world? और परमेश्वर उसे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो मैंने कैसे सृष्टि को बनाया, कैसे दुनिया को बनाया, कैसे इस दुनिया के पशु पक्षी का ख्याल और उनको ख्याल में रखता हूँ, कैसे मैं उनको खिलाता हूँ, क्या तुम जानते हो? Do you know where I keep the storehouse of the hail and the snow? क्या तुम जानते हो कि आसमान से जो बर्फ पड़ता है वो कहाँ से आता है? God tells him, if you can't understand even this small thing as a creation, can you understand my ways? तो परमेश्वर से पूछता है कि अगर तुम सृष्टि के ये छोटी छोटी बातों को नहीं समझ पाते हो, तो क्या तुम मेरे मार्गों को समझ सकते हो? See, Job was very godly, he was very upright, he was very blameless, but he also had the same opinion that, if I do what is right, everything will go right with me and God will not abandon me. That's what he thought. तो आयुब बहुत ही खरा और बहुत ही सीधा व्यक्ति था, लेकिन मन ही मन उसके अंदर एक ऐसा सोच था कि जब तक मैं सारी चीज़ों को सही तरीके से करूं परमेश्वर के नज़रों में, तो परमेश्वर हमेशा मेरे साथ रहेगा, उसकी आशीषें हमेशा मेरे जीवन के ऊपर बनाई रहेंगी। He was also in the old covenant at that time. और वो उस समय पुराने करार में था।
But after God took him to that suffering, and after God spoke to him, he had a glimpse of the new covenant, of how we in the new covenant would suffer under the persecutions and sufferings and yet rejoice in the Lord always. लेकिन एक बार वो सारे दुखों के द्वारा गया, सारे क्लेशों के द्वारा गया, फिर उसे नए करार के जीवन के बारे में थोड़ा सा चीज़ मालूम पड़ा कि कैसे हम लोग सारे मुश्किलें और सारे दुखों के बीच भी परमेश्वर की ओर धन्यवाद दे सकते हैं और आनंद मना सकते हैं. He understood that God loved him so much, that's why he allowed him to go through these sufferings. उसे समझ में आया कि क्योंकि परमेश्वर उससे इतना प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने अनुमति दी कि वो इतने सारे दुखों के जरिए जाए. And you know the end of what happened. God blessed Job double of what he already had. और क्या तुम जानते हो कि अंत में क्या हुआ? आयुब के पास परमेश्वर ने आयुब को उसके पहले से 2 गुना और आशीषें दी. So this means that God will bless us double or even unlimited of what we have towards the end of our lives if we hold firm. इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग भी अपने विश्वास में डटे रहेंगे तो हमारे जीवन के अंत में या ये सारे क्लेशों के अंत में परमेश्वर हमें दुगना आशीषें देगा. I'm not talking just about material wealth, but God will give us grace, peace, His wisdom, His nature, His love. He'll give us a purpose in our life. He'll make us rock solid. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी आशीषें सिर्फ संसारी तौर पे रहेंगी, लेकिन परमेश्वर का जो स्वभाव है, उसका जो प्रेम है, उसका जो धीरज है, उसकी जो करुणा है, ये सब वो हमें देगा और हम लोग का जो जीवन है एकदम स्थिर बनाएगा. Like Jesus mentioned in the Sermon on the Mount, you know, he who obeys these things, he's like building his house on the rock, on the solid foundation. और प्रभु यीशु ने कहा मत्ती में कि जो व्यक्ति मेरे शिक्षणों का पालन करता है वो एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो एक पत्थर पे अपना घर बनाता है. The rain came, the waves came, the thunder came, but the house stood because it was founded on the rock of obedience to God's word. और जब ये आंधी आया, तूफान आया, बारिश गिरी, तो क्योंकि ये घर का जो बुनियाद था वो पत्थर पे था, इसलिए वो घर कभी गिरा नहीं. So let us trust God and not give up hope. Let us just say, Lord, whenever I go through these problems, sometimes what I do is I just say, Lord, I can't pray sometimes. I just say, Lord Jesus, I love you, Lord. और कभी भी जब मैं भी ये सब दुखों के द्वारा जाता हूँ, निराशपन के द्वारा जाता हूँ, तो उस समय मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ ठीक से, तो मैं बस परमेश्वर से कहता हूँ कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ. I say, Lord Jesus, I love you, Lord. I know you love me. I trust you, Lord. No matter what happens, I know you love me, Lord. प्रभु यीशु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तू भी मुझसे प्रेम करता है, भले मेरे साथ कुछ भी हो, मैं ये जानता हूँ, मैं ये निश्चित मुझे है ये बात की कि तू मुझसे प्रेम करता है. And the Lord encourages me. और फिर प्रभु मुझे प्रोत्साहन देता है. I praise God that we can also all of us can do the same thing. मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि हम सभी लोग ये चीज़ कर सकते हैं. Praise God. प्रभु की स्तुति हो.